इष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Purport. The Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him, and everything after annihilation rests in Him. He is therefore the creator of the four divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called Brahmanas, due to their being situated in the mode of goodness. Next is the administrative class, technically called the Kshatriyas, due to their being situated in the mode of passion. The mercantile men, called the Vaishyas, are situated in the mixed modes of passion and ignorance, and the Shudras, or laborer class, are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of His creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions, because He is not one of the conditioned souls, a section of whom form human society. Human society is similar to any other animal society, but to elevate men from the animal status, the above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. The tendency of a particular man toward work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life, according to the different modes of material nature, are described in the 18th chapter of this book. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. Although Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Ram, Nrsimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to this system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation, or species. Okay, so this verse I think is pretty famous, मतलब काफ़ी पॉपुलर वर्स है भगवद गीता के, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि आपने सुने होंगे वर्ण आश्रम धर्म के बारे में सुना होगा आपने। तो चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, कि उनकी जो क्रिएशन है, जो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है, वो चार वर्णों में विभाजित है। तो चार वर्ण हैं और चार ही आश्रम हैं। तो वर्ण चार कौन कौन से हैं, कोई बताएगा, जिसमें अभी जो हमने अभी डिस्कस किया? एनीवन? यस ब्रो। तो ये तो चार वर्ण हो गए, विच इज़ जस्ट लाइक ऑक्यूपेशंस, कि जैसे आप कुछ काम करते हैं कि मैं कोई टीचर है मान लिया स्कूल में, तो दे कैन बी क्लासिफाइड एज अ ब्राह्मण, कि वो टीचिंग कुछ कर रहे हैं, एंड सो ऑन। मतलब तो ये ऑक्यूपेशन टाइप का हो गया जो वर्ण है। एंड देन देर आर फोर आश्रम्स एज वेल। एनीवन नोज अबाउट फोर आश्रम्स? पता है किसी को? नहीं पता? तो चार आश्रम, एक तो ब्रह्मचारी हो गया कि व्हेन यू आर बॉर्न, देन फ्रॉम द एज ऑफ so from the time you are born till the age of 25 you are generally people follow, और या ऐसा सिस्टम है कि you become a brahmachari, then 25 से you let's say you get married,
और फिर 25 से 50 यू आर अ गृहस्था। देन उसके बाद आपकी लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूटीज पूरी हो गई होंगी, तो देन यू कैन टेक वानप्रस्था। वानप्रस्था मतलब आप फॉरेस्ट में जाके, अगेन पहले फॉरेस्ट में करते थे बट लेट्स से करंटली यू कैन डू तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा, लाइक दैट। एंड देन फाइनल इज द संन्यास, वेयर यू वेयर ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन एंड यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ फुल्ली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था कि 4 वर्ण हैं जो काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं आजकल के, अगर टाइम से आपको कंपेयर करना है। एंड देन देर आर 4 आश्रम्स या फिर फेजेस ऑफ लाइफ। तो उसमें इस वर्ष में भगवान वर्णों पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी सृष्टि में 4 ये वर्ण हैं और उसको बता रहे हैं कि वो कैसे विभाजित हैं। तो भगवान ने कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आए हैं इस वर्ष में। तो भगवान बोल रहे हैं गुण कर्म विभागश। तो गुण मतलब क्वालिटीज और कर्म मतलब एक्शंस। तो जो उन 4 वर्णों के मतलब जो व्यक्तियों के एक्शंस होंगे या फिर उनकी जो क्वालिटीज होंगी, इनहेरेंट क्वालिटीज, उसके उसके अकॉर्डिंग उनको हमने भगवान ने विभाजित किया है 4 वर्णों में। तो अभी हम देखेंगे नीचे क्या क्या क्वालिटीज हैं वो। तो हाँ, एक एक पार्ट तो हो गया। एंड देन ही इज ऑल्सो सेइंग कि ये पूरी सृष्टि को मैंने 4 वर्णों में विभाजित किया है। तो उसके हिसाब से भगवान उसके कर्तारम या फिर प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं फादर, कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम इन दैट वे। जैसे और फादर इज द क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल बॉडी, उसी तरह से भगवान ने सिस्टम बनाया। तो ही इज द ही सेइंग तस्य कर्तारम अपि माम। तो ये अपी यूज किया उन्होंने यहाँ पे वर्ड, ये थोड़ा ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। जैसे कि ऑल दो, अपी मतलब ऑल दो होता है, तो ही सेइंग कि ऑल दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट सिस्टम, ऑल दो। और उसके बाद बोल रहे हैं कि विधि कर्तारम अव्ययम, कि वो स्टिल उस सिस्टम से बाहर है। तो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद इज आल्सो सेइंग हियर। सो यहाँ पे प्रभुपाद इज सेइंग कि कृष्णा बीइंग क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो उन्होंने ये जो 4 वर्ण और आश्रम का सिस्टम बनाया, दैट इज कमिंग फ्रॉम हिम एंड एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ हिम, सस्टेन्ड बाय हिम। अगेन ये आपको पता होगा कि ऑल्दो ये वाली जो ड्यूटीज होती हैं मटेरियल यूनिवर्स में, कि क्रिएशन देन सस्टेनेंस एंड देन एनिहिलेशन, वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो ये करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा जी को उन्होंने ड्यूटी दी हुई है कि वो क्रिएशन वाला काम करते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, जो भी कुछ इवन स्पीशीज ऑफ लाइफ आती हैं वो उनके थ्रू आ रही हैं। उनको एक ब्लूप्रिंट पर, अगेन ब्रह्मा जी जस्ट इज लाइक अ सेकेंडरी क्रिएटर, कि वो ऑल दो क्रिएट कर रहे हैं बट ही इज नॉट द मेन क्रिएटर। उनको जैसे कि एक हेड इंजीनियर है, उसने जो भी स्ट्रक्चर बनाना था, जो सिस्टम है वो इन प्लेस है ऑलरेडी, उसने ब्लूप्रिंट सब डिज़ाइन सब तैयार है उनका। जस्ट उन्होंने किसी को एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ओके ये डिज़ाइन है, बना हुआ है, यू जस्ट मेक दिस, जो मैंने बनाया हुआ है। तो ब्लूप्रिंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो कृष्णा इज दैट यू कैन से हेड इंजीनियर, कि उन्होंने ब्लूप्रिंट बना रखा है एंड देन जस्ट ब्रह्मा जी इज जस्ट लाइक अ सेकेंडरी क्रिएटर, कि वो ऐसे क्रिएट कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड देन एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय हिम। तो सस्टेनेंस का काम विष्णु, भगवान विष्णु अपनी कृष्णा विष्णु भगवान के फॉर्म में करते हैं। एंड देन एनिहिलेशन भगवान शिव की फॉर्म में होता है। और उसके बाद जब सब कुछ मतलब एनिहिलेशन के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो सब जाके भगवान में ही वापस से रेस्ट करता है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर क्रिएशन की साइकिल आएगी, देन इट इज़ मैनिफेस्टेड अगेन, फिर से ब्रह्मा जी क्रिएशन करेंगे एंड द साइकिल वो कंटिन्यू रहता है पूरा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है कि जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो 3 डीटीज हैं, जस्ट दे आर यू कैन से दे आर कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा इन दैट वे। हाँ, पूछ लीजिए आप। लिबरेट कर देंगे सबको। अच्छा आप नहीं यार, ओके ओके। तो ये जो प्रलय वाला पार्ट है, ये हर बार नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि
सत्ययुग आएगा, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। जरूरी नहीं इसके बाद, हर कलयुग के बाद प्रलय नहीं होती है। तो देर आर लॉन्गर साइकिल्स। मतलब जैसे कलयुग की अगर बात करेंगे तो आई थिंक इसी वाले कलयुग के बाद आने वाले हैं ना वो, कल की, एज फार एज आई नो। तो इस कलयुग के बाद एनिहिलेशन नहीं होगा, मतलब जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इस कलयुग के बाद नहीं होने वाला। तो अगेन उनकी कर्मा के बेसिस पे होंगे कि अगर जैसे इसके बाद कलयुग, जब कल के अवतार आएंगे उसके बाद सत्ययुग स्टार्ट होगा, तो जिन सोल्स के कर्मा में वैसे टाइम में बॉर्न होना लिखा होगा अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा, वो बॉर्न होंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान जिस टाइम पे लेट्स से अवतार ले रहे हैं कि उस टाइम पे सब लिबरेट हो जाएंगे, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। और महाप्रभु ने एक स्पेशल कुछ तो किया था, बट वो थोड़ा डिफरेंट पास टाइम है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कल की अवतार के बाद सब कुछ, सारे सोल्स लिबरेट हो जाएंगे और फिर नए सोल्स आएंगे। तो नए सोल्स ऐसे कोई बन, देयर इज नो फैक्ट्री ऑफ सोल्स एज सच। हाँ, ओके। तो हाँ, मतलब वही जो, क्योंकि उसके बाद सत्ययुग स्टार्ट होगा, तो सत्ययुग के अकॉर्डिंग जिनका कर्मा होगा वो वाले सोल्स दे विल टेक बर्थ इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, या सो तो कृष्णा बोल रहे हैं कि ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस सोशल ऑर्डर। नाउ एज वी सॉ कि चार चार वर्ण थे, राइट। तो ब्राह्मणा बोल रहे हैं कि दे आर सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जो गुणों की बात हो रही है, राइट, यहाँ भगवान बोल रहे हैं गुण कर्म विभाग। तो इसमें दो फैक्टर हो गए, एक गुण के बेस पे डिवीजन हुआ है, एक कर्म के बेस पे हुआ है। तो गुण अगर देखेंगे आप, तो ब्राह्मणास आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो सत्व गुण होता है, सत्गुण। तो भगवान ब्राह्मणा उस मोड में है। देन नेक्स्ट बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जिनको क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय मतलब, जैसे अगर इस वर्ड को एनालाइज करेंगे तो क्षत्रिय मतलब, जो क्षत मतलब हानि या कुछ भी, इफ समवन इज हार्मिंग यू, and triya means to liberate, yes, to save you. So one who saves people from अधार्मिक हिंसा, तो उसको आप क्षत्रिय बोल सकते हो। तो समथिंग लाइक योर पुलिसमैन, योर आर्मी, तो यू कैन कैटेगराइज देम इन द फॉर्म ऑफ क्षत्रिय। या फिर लीडर्स ऑफ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल योर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऑल देम, तो वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे। देन तो देयर विल बी इन द मोड ऑफ पैशन। यू कैन सी, मतलब फ्रॉम दैट द टाइप ऑफ वर्क दैट दे डू, वो मोस्टली पैशन के मोड में ही आप कर सकते हो जनरली। देन मर्केंटाइल क्लास जिनको बोल रहे हैं उनको वैश्य बोलते हैं। दे आर लाइक द बिजनेसमैन ऑफ टुडेज टाइम। तो दे आर इन द मिक्स मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। एंड देन देर आर शूद्रास या लेबरर क्लास, so they are in the mode of ignorance या फिर तमोगुण, सॉरी। ओके, तो इसमें फिर एक्शंस, अब एक्शंस की, तो ये तो गुणों की बात हुई। देन कर्मों की बात होती है। अगर कर्म, तो आई थिंक प्रभुपाद नीचे बोल भी रहे हैं कि 18th चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हाँ, ये लिखा है। तो सच सिम्टम्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर डिस्क्राइब्ड इन द 18th चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो ये गुण तो हमने देख लिया यहाँ पे, अब इनके कर्म क्या क्या होंगे। तो अगर आई कैन क्विकली गो टू दैट चैप्टर, उसमें काफ़ी डिटेल में मतलब कृष्णा ने बताया कि ओके, आई थिंक 40 समथिंग वर्सेस के अराउंड है वो। तो यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटीज born of their own nature in accordance with the material modes or chastiser of enemy। तो अगर ब्राह्मणों की बात करेंगे आप, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्सेस हैं। इसमें कृष्णा इज डिलिनेटिंग द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट वर्णास। तो इसमें जैसे बोल रहे हैं शमो दमस तपः शौच शांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो ये ब्राह्मणों की एक्शंस हो गए। तो यू कैन सी पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम, रिलीजियसनेस, दीज आर द नेचुरल क्वालिटीज बाय विच द ब्राह्मण वर। तो ये ब्राह्मणों की क्वालिटीज हो गई। देन ऐसे आगे क्षत्रियों की होगी शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्धे चाल्पनायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल,
generosity, leadership. They are the natural qualities of Kshatriya. And then इस वर्ष में दोनों क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य दोनों की क्वालिटीज यहाँ पे कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. So farming, cow protection and business are the natural work for the Vaishyas and the Shudras are the laborer and service to others. So you can see जो प्रभुपाद यहाँ पे 18th चैप्टर का उन्होंने रेफरेंस दिया था नीचे, that is what he is talking about. कि ये यहाँ पे क्वालिटीज बताई प्रभुपाद ने कि कौन से मटेरियल मोड का कौन सा मटेरियल नेचर का कौन सा मोड से वो ड्रिवन होंगे एंड देन व्हाट आर देयर ड्यूटीज या एक्शंस जनरली. जो गुण कर्म विभाक्षा की बात हुई है तो जो कर्म है वो हमने आगे ये भी देखा 18th चैप्टर. ओके तो ये वर्णाश्रम का पूरा सिस्टम हुआ. आगे भी आई थिंक देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर इज इवन अबव द ब्राह्मणस. तो ब्राह्मणों को जनरली हेड ऑफ द सोसाइटी माना जाता है कि दे लीड द क्षत्रियस एंड क्षत्रियस को हैंड्स या लेग्स की तरह माना जाता है. दे परफॉर्म द एक्शन and hands की तरह माने जाते हैं, legs are the Shudra. So in that way Brahmanas are considered the highest, so because they lead the society. So Brahmanas, by all the Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman. तो ये आपने सुना होगा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बोला जाता है. बिकॉज समवन हु नोज ब्रह्मन या ब्रह्म, ही इज सेड कि ये ब्राह्मण है. तो जनरली स्पीकिंग अगर कोई डिवोटी नहीं है वो ब्राह्मण, तो मोस्टली उनका इम्पर्सनल कंसेप्शन वाला ब्राह्मण का, वैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को इम्पर्सनल एस्पेक्ट में मोस्टली फोकस करेंगे उस पर. सो बट अ मैन हु ट्रांसेंड्स द लिमिटेड नॉलेज ऑफ अ ब्राह्मण एंड रीचेज द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये हम बात कर रहे हैं वैष्णव की. जैसे जो प्रभुपाद अब प्रीचिंग कर रहे हैं, राइट, वो इसकी बात कर रहे हैं कि आप ब्रह्म तो जानते हो, उसके ऊपर भी जानते हो. तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भगवान के एस्पेक्ट आ जाएगा. तो जैसे श्रीमद् भागवतम में आपने वो वर्ड सुनी होगी कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उनकी 3 मैनिफेस्टेशन है. ब्रह्मेति भगवानिति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे. तो एक ब्रह्मन है, देन परमात्मा एक मैनिफेस्टेशन है और एक भगवान वाला है. तो जो लोग भगवान को इस फॉर्म में जानते हैं, पर्सन एज अ पर्सन, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो पर्सनल एस्पेक्ट है, इफ समवन नोज अबाउट दैट एस्पेक्ट, तो उसको प्रभुपाद बोल रहे हैं वो ब्राह्मणों से भी ऊपर है. ये वो ब्रह्म तो जानते ही हैं, उसके ऊपर जो भगवान वाला कॉन्सेप्ट है, दे हैव सम पर्सनल कनेक्शन विद द, और दे नो कि दे कैन हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद द लॉर्ड एज वेल. तो वो दैट इज इवन हायर देन ब्राह्मणस. सो हाँ, तो कृष्णा इस वर्ष में बोल रहे थे कि आई एम बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जो भी सिस्टम है ये वाला, कि ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम, यू शुड नो दैट आई एम येट द नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल. तो वो इस सिस्टम से ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल्दो मैंने क्रिएट किया है बट स्टिल आई एम आउटसाइड ऑफ दिस सिस्टम. तो ऐसे ही प्रभुपाद ने यहाँ पे ही बोला है एंड में. And as Krishna is transcendental to the system of the 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation or species. तो वैष्णव भी टेक्निकली स्पीकिंग वर्णाश्रम सिस्टम के परे हैं. तो फिर हम तो आपने देखा होगा फिर भी कि हम फिर भी वर्णाश्रम को बोलते हैं कि वी शुड फॉलो वर्णाश्रम. तो हम तो इस कैटेगरी में माना चाह रहे हैं ना, जिसमें यहाँ प्रभुपाद ने ये लिखा है, अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल लाइक कृष्णा. भक्त भी उनके ये वर्णाश्रम सिस्टम के बाहर होंगे. तो हम तो इस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, फिर हम क्यों बोलते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित करना है, क्यों बोला था प्रभुपाद ने? कोई इसका आंसर देना चाहेगा? कि प्रभुपाद फिर भी बोलते हैं ना, आपने प्रभुपाद के कोर्स पढ़े होंगे या बुक्स में भी पढ़ा होगा कि वी हैव टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम धर्म. तो अगर प्रभुपाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं, राइट, ऐसा कि अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल टू ऑल डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि जो ये चातुर्वर्ण्यम जो भी कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद इससे इनकी जो वैष्णव होते हैं, जो हमें वो बनाना चाह रहे हैं प्रभुपाद, वो बोल रहे हैं कि वो इस सिस्टम के पार हैं, मतलब इससे अलग हैं. सो देन व्हाई इज प्रभुपाद स्टिल सेइंग कि वर्णाश्रम स्थापित करना? भक्ति को ज़्यादा सीरियसली. तो भक्ति से क्या कनेक्शन है वर्णाश्रम का? वो तो इस
इस मटेरियल वर्ल्ड का हो गया, भक्ति हम बोल रहे हैं दैट इज ट्रांसेंडेंटल। एनीवन ऑनलाइन कोई है तो उनको वो भी बोल सकते हैं। मनीषा माता जी, मानसी माता जी, लाइट ऑफ, ओके, यस चिन्मय माता जी, आई थिंक, यस माता जी। ओके, थैंक यू माता जी। हाँ, आंसर आपने अच्छा किया। तो माता जी ये बोल रहे हैं कि आई थिंक इतना मुझे, अगर मैं समराइज़ करूँ कि अभी करंट फॉर्म में हम या करंट सिचुएशन में वी माइट नॉट बी प्योर डिवोटीज, राइट? तो जब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो वर्णाश्रम का वी कैन फॉलो, कि जो भी आपकी, जैसे वो बोल रहे हैं कि जो भी आपका नेचुरल गुण है उसको आप कृष्णा की सर्विस में व्हाट यू से अप्लाई कर दो, एंड देन यू कैन ग्रेजुअली यू कैन ट्रांसेंड दैट द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम। तो एक्चुअली इट्स अ प्रीटी गुड आंसर कि हाँ, दैट इज वन ऑफ द, in fact this can be the main reason why Prabhupada is still saying कि हमें वर्णाश्रम करना है, या वर्णाश्रम हमें स्थापित करना चाहिए। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तो देयर ही वाज नॉट प्रीचिंग कि हमें वर्णाश्रम स्थापित करना है। वो ठीक है, उनको जस्ट ह्यूमन लेवल पे लेके आ रहे थे कि हाँ, जो फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड देन चैंट हरे कृष्णा और टेक प्रसाद, एंड बेसिकली जो प्योर डिवोशनल सर्विस थी उसको, उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। एंड ही गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स एज वेल, कि जो डिवोटीज थे एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे इंडिया में अगर देखोगे आप तो लोगों को फिर भी पता होता है कुछ भी भक्ति के बारे में, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रभुपाद के मुंह से सुना कि कृष्णा कौन है, भक्ति कैसे करनी होती है, क्या करना होता है। तो एंड व्हेन दे वेंट आउट टू प्रीच, जो भी प्रभुपाद ने उनको बोला, तो वो एकदम से कर पाए थे। तो प्रभुपाद वहाँ पे उनको ऐसे ग्रेजुअली नहीं ले जा रहे थे कि पहले वर्णाश्रम स्थापित कर लूँगा चलो, फिर शुद्ध भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद ने उनको डायरेक्टली एक हाई प्लेटफॉर्म पे रख दिया था। तो एक्चुअली इट्स लाइक कि जैसे वर्णाश्रम को हम बोलते हैं कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू प्योर डिवोशनल सर्विस। अगर आप वर्णाश्रम को ऑल इन ऑल मान के चलोगे कि हाँ मुझे सिर्फ वर्णाश्रम फॉलो करना है, कीपिंग कृष्णा आउट ऑफ वर्णाश्रम, सिर्फ वर्णाश्रम जो भी हमने क्वालिटीज पढ़ी, राइट, यहाँ पे ये ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, शूद्रों की, वैश्यों की, तो अगर सिर्फ उस पर ही फोकस करोगे देन वो आसुरी वर्णाश्रम होता है। मतलब कि कृष्णा को आपने साइड में कर दिया, सिर्फ वर्णाश्रम जो भी स्क्रिप्चर में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, वो आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर कृष्णा वहाँ पे नहीं है तो वो आसुरी वर्णाश्रम है। फिर वो वैसे ही हो जाएगा जो अभी कुछ 1000 साल पहले या कुछ 100 साल पहले जो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था। तो अगर कृष्णा को आप आउट कर देंगे सिस्टम से, वर्णाश्रम से, तो फिर वो वैसा इट विल डिग्रेड इनटू समथिंग लाइक कास्ट सिस्टम, कि
ब्राह्मण विल, फिर वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एलिवेटिंग टू हायर प्लेटफॉर्म्स, वो और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश मोटिव्स के लिए औरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो, कि ब्राह्मण बोले हैं कि नहीं, जो मैं बोलूँगा वो करो, क्योंकि आई एम सपोज टू बी द लीडर। तो अगर वो तभी होगा जब कृष्णा को आप साइड कर दोगे, तो धीरे धीरे वो सिस्टम डिग्रेड होके वहाँ पे जब वैसा बन जाएगा, फिर वो कास्ट सिस्टम जो हम सुनते हैं। इसकी आई थिंक जो सनातन धर्म की सबसे ज़्यादा वेस्ट में जो अ, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग होती है, उसमें आई थिंक टॉप मोस्ट पॉइंट ये रहता है कि वर्णाश्रम के ऊपर जिसको हम वर्णाश्रम बोलते हैं, उसको वो कास्ट सिस्टम बोल देते हैं। इफ़ यू से कि हाँ, कि प्रभुपाद व्हेन ही वाज टीचिंग दिस, तो वेस्टर्न लोग सबसे पहले ये बोलते हैं, जिनको थोड़ा आइडिया रहता था इंडियन कल्चर का, वो सबसे पहले उनसे वही बोलते थे कि ये तो कास्ट सिस्टम है। तो फिर प्रभुपाद उनको एक्सप्लेन करते थे कि व्हाट इज ही हियर टू प्रीच। तो या आई थिंक माता जी ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया उसका, कि करंटली आप जिस सिचुएशन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ उसको बिल्कुल कि वर्णाश्रम को आप ले नहीं रहे हो, सिर्फ हम सब शुद्ध भक्ति करेंगे। एक कोई वो भी बोल सकता है फिर कि जैसे प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में किया वैसे ही कर लेते हैं। तो उसमें फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। जैसे डिवोटीज जब प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कर रहे थे, उस टाइम पे दे आर लाइक कि प्रभुपाद जैसे मैग्नेट नहीं होता कि यहाँ पे आयरन की कुछ फाइलिंग्स पड़ी हैं, मैंने मैग्नेट उस पर ऊपर की, तो दे विल ऑल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल ऑल्सो एक्ट लाइक मैग्नेट, राइट। तो वो वैसा ही कुछ हुआ था कि प्रभुपाद ने उनको एम्पावर कर दिया, एंड नाउ दे आर ऑल्सो एक्टिंग ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, कि वो भी प्रभुपाद प्योर डिवोटी हैं, उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एज अ प्योर डिवोटी की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका एक लिमिटेशन होगा, मतलब कि ठीक है, प्रभुपाद कांट ओवरसी एवरीथिंग, राइट। तो फिर वही होगा उनके जब व्हेन दे विल टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, या फिर जब उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, तो मे बी दे, उनको फिलोसफी नहीं पता, उनको प्रॉपर कल्चर नहीं पता कि कैसे डील करना होता है, तो देन दे विल फॉल टू देयर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, और वो वही होंगी जो उन्होंने पहले सीखी होगी, राइट। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में वैसे किया, देन लेटर ऑन ही वाज, जब सोसाइटी काफ़ी बड़ी हो गई, तो जब एक्सपेंशन वाला मोड था, तब प्रभुपाद ने ऐसे बहुत फोकस नहीं किया मे बी कि वर्णाश्रम करो वर्णाश्रम करो। तो एक्सपेंशन मोड में जैसे स्टार्टिंग में, तब उन्होंने प्योर डिवोशनल सर्विस के जो प्रिंसिपल थे उस पर फोकस किया। देन लेटर ऑन ही सेड कि अब जब व्हेन ही सॉ कि ओके वेस्ट में डिवोटीज लेट्स से दे वर फॉलिंग डाउन, या फिर जो प्रभुपाद बोल रहे थे स्टार्टिंग में उन्होंने किया बाद में नहीं किया, या बाद में डिवेट हो गए, तो वो उसी वजह था कि कल्चरली वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, they didn't know कि what is the proper appropriate duty as per the Vedic scriptures या as per the scriptures। so so हाँ, अब आई थिंक हम उस स्केल पे तो हैं, मतलब अगर मैं इस्कॉन की बात करूँ, तो देन इट्स अ ह्यूज सोसाइटी एंड इट्स गुड कि वी फोकस ऑन द वर्णाश्रम सिस्टम एंड बट कीपिंग कृष्ण एट द सेंटर। तो वैसे वर्णाश्रम सिस्टम को आचार्य ने बोला है दैवी वर्णाश्रम। तो जैसे हमने पहले बोला था, जो पिछला सिस्टम की बात कर रहे थे, तो दैट वाज आसुरी वर्णाश्रम, कि वो वर्णाश्रम फॉलो कर रहे थे, आप 4 वर्ण 4 आश्रम, और स्क्रिप्चर्स के इंजंक्शन भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसमें कृष्णा ही है, तो कृष्णा नहीं होंगे तो फिर वो आसुरी बन जाएगा, देन इट इज बाउंड टू बी डिग्रेडेड एंड एवरीवन विल फॉल डाउन इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअली, वो फॉल डाउन हो जाएगा। और तो वी वांट टू फॉलो दैट वर्णाश्रम, जहाँ पे जैसे माता जी ने बताया कि आपकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, आप उनको कृष्णा की सर्विस में एम्प्लॉय करो, एंड देन यू विल गेट एलिवेटेड। सो सो या दैट्स द होल क्रक्स। जैसे आई थिंक भक्ति विकास महाराज का इस पे एक लेक्चर भी है, उसमें वो बोल रहे थे कि यू हैव टू एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन टू गो बियॉन्ड डेजिग्नेशन। कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ब्राह्मण जैसी टेंडेंसी है, तो ओके यू एंगेज इन द ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मणों के लिए एक्शंस और गुण है, वो उनको आप फॉलो कीजिए। अगर आपके गुण ब्राह्मण जैसे हैं, डू एक्शन लाइक ए ब्राह्मण, एंड सो ऑन फॉर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो तो हम टेम्पररी उनको बोल रहे हैं कि यू एक्सेप्ट दिस डेजिग्नेशन, कि हम ब्राह्मण, कोड एंड कोड ब्राह्मण, कोड एंड कोड क्षत्रिय एंड सो ऑन। बट गोल वो नहीं है कि मैं अच्छा ब्राह्मण बनूं, या मैं अच्छा क्षत्रिय बनूं, या मैं अच्छा शूद्र बनूं। वो हमारा गोल नहीं है फिलोसफी का। फिलोसफी का गोल यही है कि हमें, कि आई वांट टू बी कृष्णा कॉन्शियस, ये हमेशा रहेंगे। तो कृष्णा को हमेशा अगर आप सेंटर पे रखेंगे आप, सो दैट इज सपोज टू बी व्हाट प्रभुपाद इज आल्सो सेइंग, कि जो वर्णाश्रम बोल रहे हैं प्रभुपाद, वो सिर्फ प्लेन वर्णाश्रम नहीं है, इट इज कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, देन बिल्डिंग वर्णाश्रम अराउंड दैट। सो देयर
तो वहाँ पे तो एज आई वाज सेइंग कि इट्स लाइक एक्सेप्टिंग डेजिग्नेशन कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग सम डेजिग्नेशन टू गो बियॉन्ड डेजिग्नेशन। मेरा मेन गोल वही है कि मुझे, जो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये फाइनल लाइन लिखी है जो प्रभुपाद ने, गोल हमारा वही है वर्णाश्रम का। जो प्रभुपाद बोलते हैं कि वर्णाश्रम लाना है, तो वो यही है कि जैसे कृष्णा इस सिस्टम से ट्रांसेंडेंटल है, 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड 4 आश्रम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो सेम वे में हमारा गोल यही है अभी भी कि हमें उससे बाहर ही जाना है। और सो या दिस इज आवर गोल स्टिल, इवन दो व्हेन ही इज सेइंग वर्णाश्रम लाना है स्टिल। सो अगर थोड़े कैची उसमें बोलूँ तो एक्सेप्टिंग डेजिग्नेशन टू गो बियॉन्ड डेजिग्नेशन, सो दैट्स आवर गोल। और एक वो भी था, जैसे अगर आप वर्णाश्रम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो जैसे अभी बहुत सारे डिवोटीज हैं, वो ऐसे बाहर किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते, कॉर्पोरेट जॉब में जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का भी, और वो उग्र कर्मा है। मतलब आपने शायद शब्द सुना होगा ये उग्र कर्मा, प्रभुपाद कई बार अपने परपर्ट्स में लेक्चर्स में यूज करते थे। तो वो ऐसा करना है जिसमें आप मतलब यू विल बी फोर्स टू गेट एंगेज इन मटेरियल वर्ल्ड अलॉट, मतलब मोर देन, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है हमें, बट वहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा उस मतलब मटेरियल नेचर में चला जाएगा कि आप वहाँ पे देर आर हाई चांसेस कि आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो उसको उग्र कर्मा बोलना। तो अगर आप वर्णाश्रम के कोर प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो उससे आपको वहाँ भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि आपको उग्र कर्मा नहीं करना पड़ेगा, कि आपको ऐसे कॉर्पोरेट किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाके 9 to 5 ऐसे कुछ टाइम होगा, उसमें आपको ये करना है, आपके टारगेट हैं। तो आपको मतलब यू कैन सी, अगर आप में से किसी ने कॉर्पोरेट जॉब की है, यू विल सी कि किस तरह का प्रेशर होता है, या यू हैव सर्टेन गोल वो आपको अचीव करने हैं एंड सो ऑन। तो वो उग्र कर्मा है, आपका ध्यान कृष्णा की जगह वहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होएगा, मतलब वो देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हाँ, उग्र कर्मा से भी आपको वो शांति मिलेगी। तो ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर ही हैज सम फार्म प्रोजेक्ट्स, की फार्म प्रोजेक्ट्स बना रहे, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, मे बी यू कैन गो देयर एंड देन लिव अ सिंपल लाइफ, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो या दैट वाज द गोल ऑफ प्रभुपाद व्हेन ही इज सेइंग कि ओके एस्टैब्लिश वन आश्रम। बल्कि ऐसे कई बार तो मैंने ऐसे वो श्लोका सुना होगा ना आपने, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्य था, कि क्या बोल रहे हैं? गतिरन्य था, हाँ। तो उस श्लोका में ये ऐसे ड्रिल डाउन कर रहे हैं, राइट, कि सिर्फ हरि नाम से ही आपका कलयुग में उद्धार होगा, कि और कोई वे नहीं है, और कोई वे नहीं है, और कोई वे नहीं है। ऐसे प्रभुपाद भी एंड में मतलब आखिरी के टाइम पे, मतलब अराउंड मतलब 70 आफ्टर 75, कई कुछ लेक्चर में सुना था उनका मैंने, तो वो ऐसे बोल रहे हैं वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम, उन्होंने भी ऐसे बोलता। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू ड्रिल दिस डाउन कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू। तो अब यहाँ पे अगर कोई उनसे पूछ ले क्यों आप वर्णाश्रम बोल रहे हो, इतना फोकस क्यों कर रहे हो, जब आप यहाँ पे बोल रहे हो ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस तो ट्रांसेंडेंटल है वर्णाश्रम से, फिर आप क्यों ऐसा वर्णाश्रम 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 कर रहे हो? तो वो इसीलिए, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद को ये वाला पर्पट पहले लिखा था 70 कुछ में तो भूल गए वो, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि वो वाई प्रभुपाद इज सेइंग कि वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करना है। ओके, आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चन नाउ, अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो, या और कोई पॉइंट, इफ आई मिस समथिंग प्रभु यू कैन आल्सो ऐड। ऑनलाइन भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आयुष प्रभु, यस प्रभु। आप पूछ रहे हैं प्रश्न आयुष प्रभु? यस प्रभु। इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? आप बोल रहे हैं कि कलयुग का एक दिन सतयुग के 1000 दिन के बराबर है, ऐसा कुछ? हम्म।
ओके। ओके, आप वैसे कुछ बोल रहे हो कि आपने कहीं पढ़ा है कि सतयुग का 1000 साल का तप कलयुग के एक दिन के तप के बराबर है, ऐसा कुछ? तो वो कौन सा तप है, आप ऐसा पूछ रहे हैं? ओके, तप क्या चीज़ है? काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। तो एक तो आपने कहाँ पे पढ़ा था, प्रभुपाद की बुक में पढ़ा था? ओके, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि ये ऐसा कुछ क्या लिखा है प्रभुपाद ने। बट जनरली स्पीकिंग, लेट्स से अगर इस टॉपिक पे बात की भी जाए तो हाँ, मतलब कलयुग का ड्यूरेशन कंपेयर टू सतयुग तो काफ़ी कम होता ही है। तो जो उस टाइम पे योगी, लेट्स से ऐसे बोलते हैं, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तप किया था। तो यू कैन से इट्स कम। हाँ, तो कंपेयर टू आवर एज इट मे बी समथिंग लाइक 60 ईयर्स आई थिंक। मतलब उस समय 1000 को यहाँ पे आप डिवाइड बाय 1000 कर दो, वैसे सिंपल। तो हाँ, वो दैट इज फाइन। मतलब जो आप सोच रहे हो, अगर ऐसे इक्वेट किया जाए तो दिन में तो नहीं होगा, बट हाँ, लेट्स से कुछ ईयर्स में हो सकता है, वहाँ के 1000 ईयर्स, 60,000 फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स में हो गए। बट अब आप पूछ रहे हो कि वो तब कौन सा है, राइट? तो इसका भी मतलब आंसर या हाँ, उसका उत्तर हर हर युग के अलग अलग होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में इसके ऊपर अ, बताया हुआ है कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखा द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तन। कि जो सतयुग में जो आपने अ, विष्णु भगवान के जो स्मरण करके जो मिलता है, मेडिटेशन वाला प्रोसेस, सेम रिजल्ट आप त्रेता युग में यज्ञ करके कर सकते हैं। और द्वापर युग में सेम रिजल्ट आपको डीटी वर्षिप से मिल जाएगा। और कलयुग में आपको फिर वो सेम रिजल्ट हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। तो हर युग का प्रोसेस, जो युग धर्म है, वो सब युगों का अलग अलग होता है। कि जो द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दैट इज डिफरेंट फॉर ईच एज। तो सतयुग में जैसे हमने देखा, मेडिटेशन ऑन लॉर्ड विष्णु। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में डीटी वर्शिप, और अभी कलयुग में हम बोल रहे हैं हरिनाम संकीर्तन। तो अगर आप लेट्स से कोई तप की बात कर रहे हो सतयुग से कंपेयर करके, तो उसका प्रोसेस अगर यहाँ पे अगर मैं कलयुग में उसको लाऊं तो वो हरिनाम संकीर्तन हो जाएगा। तो जो अभी हम कर रहे थे, चैंटिंग कीर्तन किया था हमने, या जपमाला पे हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो वो सेम हम वही कर रहे हैं जो उस टाइम के योगी तप करके करते थे। तो वो प्रोसेस सेम है। तो अगर आज के टाइम का या कलयुग के टाइम का आप बताओगे, तो वो प्रोसेस जो तब पहले चलता था वो अब हरिनाम संकीर्तन है। वॉज आई एबल टू आंसर प्रभु? ओके, थैंक यू प्रभु। और कोई, किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? ओके, एनीवन फ्रॉम हियर? वरना फिर क्या चलता है प्रभु इसके बाद? ओके। यस प्रभु। यस। अच्छा, एग्जांपल दीजिए कोई। ओके। हम्म। धर्म आपका, हाँ। आ, नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि एक तो धर्म हो गया, एज अ क्षत्रिय ही इज सपोज टू फाइट। फिर वो बोल रहे हैं कि एक और स्पेशल टाइप का वो एक्शन बता रहे हैं कि कुछ पायस टाइप का एक्शन, राइट? हाँ, तो आई थिंक वो हर कोई कर सकता है। मतलब आपका मेन तो यही है, जो जैसे अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका जो ब्रेड एंड बटर टाइप का होगा वो यही हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, जो भी यहाँ पे था, शौर्यम, तेजो, धृति। अच्छा, दान भी है इसमें। हाँ, जैसे इवन ध्यान यहाँ पे है, करेज, जेनरॉसिटी,
ओके जेनरसिटी में काउंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्ण का आपके नाम सुना होगा, वो बहुत फेमस है दान देने के लिए। इवन जैसे ब्राह्मणों का भी बल्कि एक ही धर्म है, और इवन वैश्य, मतलब आई थिंक दान इज काइंड ऑफ कॉमन इन एवरीवन कि जैसे ब्राह्मणों का अगर एक और कहीं तो आई डोंट नो द सोर्स ऑफ दैट कोड, बट पठन पाठन यजन याजन और दान का लेना और देना, ये ब्राह्मणों की भी ड्यूटीज भी होती है कि दे रीड द स्क्रिप्चर्स, मतलब स्टडी द स्क्रिप्चर्स एंड स्टडी और टीच इट टू अदर्स। तो पठन पाठन ये हो गया कि जो टीचर्स होते हैं वो, या जो भी गुरु होते थे, जैसे भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, राइट, तो वो ब्राह्मण थे और क्षत्रियों को जैसे वो टीचिंग कर देते थे। ऐसे ही कृष्ण भगवान के गुरु थे सांदीपनि मुनि, ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण, और भगवान एज अ क्षत्रिय उनके पास गए थे। तो ये ब्राह्मणों का एक वो हो गया पठन पाठन, कि वो स्क्रिप्चर्स को या शास्त्रों को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और पढ़ाएंगे। और यजन याजन, कि वो यज्ञ करेंगे और करवाएंगे। और एक होता था दान, वो देते भी हैं और लेते भी हैं। तो एज अ ब्राह्मण ऑल्सो वो ऐसा नहीं है कि दान आ जाएगा और वो रख के चले जाएंगे, वो उतना ही रखेंगे अपने पास जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, हो सकता है उसको किसी किंग ने कुछ भी यज्ञ करवाया और उसको मे बी वो उसका मेन पुरोहित थे, और उनको बहुत सारा दान में कुछ दे दिया, थाउजेंड्स ऑफ, आपने जैसे स्क्रिप्चर में पढ़ा होगा कि थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, जैसे महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया, कोई भी मे बी अश्वमेध यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ किया था, तो जो उसके मेन पुरोहित होंगे उनको उन्होंने इतना मटीरियली अगर ऑपुलेंट वो दें, तो गिफ्ट्स बहुत ऑपुलेंट थे। तो जो प्रॉपर ब्राह्मण होंगे उनको जितना चाहिए होगा वो उतना अपने पास रखेंगे। ऐसे नहीं है कि वो होल्ड करके रख लेंगे कि हाँ मैं कि बैंक अकाउंट है उसमें डाल दूंगा बाकी, और देन आई विल यूज इट लेटर एट लेटर टाइम। तो ब्राह्मणों का वो नहीं होता, दे डोंट होल्ड। जो होल्डिंग की मेंटालिटी होती है वो मोस्टली बिजनेस क्लास की, शूद्रों की वहाँ पे आती है। और इवन जो क्षत्रिय होते हैं वो भी ऐसे होल्ड नहीं करते, जस्ट प्रजा के उसके लिए वो टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओनली। और ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे कि उनको कोई ऑपुलेंट गिफ्ट मिला भी तो वो उसको तभी देखेंगे। आप ब्राह्मणों का लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत मिनिमलिस्टिक टाइप का होता है, कि ऐसे नहीं है कि किसी राजा के वो मेन पुरोहित हैं, राजपुरोहित हैं कोई, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ ऐसा जी रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली, कि ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र, सॉरी, वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के या राम जी के मेन पुरोहित है, तो बीइंग द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड उनको बहुत, मतलब ही इज द मेन पुरोहित ऑफ दैट किंगडम, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएंगे, ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण दान लेते हैं और फिर आगे जितना उनको चाहिए होगा उतना यूज करेंगे, उसके बाद आगे ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, कि अगले दिन जो चाहिए होगा फिर वो भिक्षा से या जो भी है कोई और दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं रख के रखूंगा फिर कल यूज कर लूंगा, परसों यूज कर लूंगा। तो ब्राह्मणों, अगर आपकी वैसी मेंटेलिटी है तो देन यू कैन सी यू वॉन्ट बी अ गुड ब्राह्मण। तो यार, यस, आपका आंसर मिला प्रभु, एक मिनट में। प्रभु आपका कोई डाउट है और? ओके, तो ये दान वाला जो पार्ट है ये अलग है, और देयर कैन बी सम पायस कर्मा एक्टिविटीज जो सभी कर सकते हैं, तो वो अलग एक्शन में आ गए, वो पायस क्रेडिट में आते हैं। आपका जो कोर, जो ब्रेड एंड बटर होगा, मतलब कि आपका जो कोर एक्शन होंगे वो यहाँ पे डिफाइंड है। देन देर आर सम एक्शन विच यू कैन कैटेगराइज एज पायस एक्शन, कि वो पायस पायटी के एक्शन में आ जाएंगे। तो जनरली स्पीकिंग अगर जो ज़्यादा करता है वो, तो मे बी उसको इस डेथ के बाद, इस बॉडी के बाद में भी हायर लोगों में, स्वर्ग लोग में जाके उनको कुछ मिल जाएगा। तो जब तक जो क्रेडिट उन्होंने पायस एक्शन से लिया था, जब तक वो चलेगा वो दे विल एंजॉय देयर, फिर वापस से मटेरियल, मतलब भूलोक में आके फिर से ह्यूमन बॉडी या कुछ लेना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा चलता है। वो पायस क्रेडिट पे हम उतना फोकस नहीं करते। फॉर अस पायस एंड इम्पायस बोथ आर सेम, बोथ विल कीप यू एंटैंगल्ड इन दिस साइकिल ऑफ अर्थ एंड डेथ। सो या पायस से जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आप वो जो क्रेडिट मिला होगा यू विल यूज इट टू गो टू हायर प्लैनेट्स, एंजॉय देयर फॉर सम टाइम, और फिर बाद में फिर से यहीं पे आ जाओगे। तो वो साइकिल चलता ही रहता है। यस माता जी। इसका भी मैंने आई थिंक सुना हुआ है। आई डोंट नो द रेफरेंस इन द स्क्रिप्चर, बट ये है कि अपना जीविका उपार्जन करने के लिए कुछ झूठ बोलना अलाउड है कुछ लेवल तक। भगवद गीता only? नहीं, एज
मतलब डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं, कोई वर्स कोट करेंगे आप, मतलब अगर? ओके। हाँ, मैंने भी मतलब सुना है, और शायद किसी बुक से ही पढ़ा होगा। तो हाँ, अपना। हाँ। आई थिंक वो अलाउड होता है, जैसे आप गए होंगे ना दुकान, कोई किसी बिजनेस शॉप वाले से, उसको बार्गेनिंग करोगे और आप, तो बोलेगा अरे ये तो मेरा सेल्स प्राइस है, मतलब इसी इतने पे तो मुझे मिला था, आपको भी मैं इतने पे दे रहा हूँ। तो वो कोई समाज सेवा तो करने बैठा नहीं वहाँ पे कि जितने में वो खरीद के लाया था उतने में आपको दे देगा। तो वो भी उसने झूठ बोल दिया कि हाँ मेरा ही प्राइस इतना है, आपको भी मैं 1 रुपये ज़्यादा 2 रुपये ज़्यादा पे दे रहा हूँ। तो वो भी झूठ ही बोल रहा है, तो इट इज़ अलाउड, अदरवाइज वो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब जैसे इंडिया में जैसे बार्गेनिंग होता है, तो हाँ चलेगा उतना। तो आई थिंक इट इज़ अलाउड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अब अगेन वो लिमिट नहीं मुझे पता कि ये लाइन क्रॉस कर दी तो वो कर्मा। हाँ, सो उसका मुझे बहुत डेफिनेट आंसर नहीं पता जो आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई लाइन है कि अच्छा इस लाइन से पहले आप सेफ हो और आपने ये कर दिया तो अब आपको कर्मा लगेगा। सो दैट आई एम नॉट वेरी श्योर। और कुछ है आपका आंसर क्वेश्चन? नहीं ना? एनी वन एल्स? यस ब्रो। ओके। नहीं, बैटलफील्ड में तो ओके, चैरिटर, ओके। ओके। ब्राह्मण है यहाँ पे, टीचिंग दे रहे तो ब्राह्मण हो गए ना। तो आपने चारों वर्णों का कर दिया भगवान को। तो आपको क्वेश्चन कुछ कमेंट है या फिर क्वेश्चन है? हम्म। तो आप बोल रहे हो कि भगवान ऐसे जब छोटे थे वृंदावन में थे तो वैश्य थे, फिर क्षत्रिय बन गए वहां जाके मथुरा में, फिर यहाँ पे शूद्र ही बन गए, और ये टीचिंग दे रहे हैं तो ब्राह्मण ही बन गए। तो आप बोल रहे हो कि ऐसे आप भी मतलब मल्टी लैंग्वेज मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हो। हम्म। हाँ, मतलब वो कर सकते हैं, भगवान है, वो तो बोल रहे हैं मैं सिस्टम में हूँ भी नहीं। तो इन दैट वे ओके, इट इज फाइन फॉर हिम मे बी। बट हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, जैसे जैसे अगर आप वो देखोगे, पांडवों के जो मार्शल गुरु हैं द्रोणाचार्य, वो बाय बर्थ या बाय नेचर ब्राह्मण है, पर वो फाइट भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आई थिंक कुछ अलाउड होता है, आई थिंक हायर वर्ण आपको पता है तो। हाँ, वो कृष्णा को प्लीज करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो वो आप कर सकते हो। तो फिर वहां पे वो नहीं देखोगे कि अरे मैं तो ब्राह्मण, मैं शूद्र का काम नहीं करूँगा। तो अ, तो हाँ, मतलब वो जैसे अ, भगवान कृष्ण भी जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर महाराज का, तो उनका डिपार्टमेंट था लोगों को रिसीव करके उनके शूज लेके रखने का। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी लोली जॉब, बट जस्ट टू प्लीज हिज डिवोटी युधिष्ठिर महाराज, ही वाज डूइंग दैट सर्विस एज वेल। तो अगेन वो थोड़ा ट्रांसेंडेंटल लेवल पे हो गया। तो कृष्णा को अगर प्लीज करने के लिए आप भले क्षत्रिय हो शूद्र हो, कुछ भी हो आपका नेचर, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि अगेन गोल वो नहीं है। तो अगेन जैसे आपने सुना होगा इसके बारे में, अभी एक और सेशन में बात करें कि धर्म संकट, या ऐसे लोअर धर्म, बहुत सारे टाइप के धर्म हो गए आपके। जैसे आपके शरीर का धर्म, लेट्स से ये हो गया जो वर्णाश्रम की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपकी बॉडी वैसी कंडीशन है, लेकिन अगर आपको लेट्स से गुरु ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और वो आपके इस वाले बॉडी के धर्म से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, so then you take the instruction of your guru higher। फिर आप that's how you transcend the modes, कि आपका मोड है कुछ भी करने का, लेकिन आपके गुरु का इंस्ट्रक्शन है ना। तो ये धर्म संकट हुआ एक तरह से। धर्म संकट मतलब कि एक धर्म है आपका ये, एक धर्म ये है, दोनों आप ये करोगे तो ये खराब हो जाएगा, ये करोगे तो ये वाला नहीं कर पाओगे आप। तो जब ये ऐसे चॉइस करने का आएगा, तो आपको वे करना पड़ेगा कि ये हैवी है, ये फिर हैवी। तो जो हैवी होगा आपको वो करना पड़ेगा। तो अगेन ये जैसे वर्णाश्रम है, तो मे बी आप एज अ ब्राह्मण हो और आपको किसी गुरु ने, आपके गुरु ने बोला ये कर दो, और वो मे बी शूद्र का काम है फॉर एग्जाम्पल। तो आप सोचो कह रहे नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं शूद्र वाला काम नहीं करूँगा।
मैं नीचे आ रहा हूँ अपने लेवल से। तो लेकिन वो आपके गुरु की इंस्ट्रक्शन है, दैट इज इफ यू फॉलो हिम, तो आप एक्चुअली और हायर लेवल पे जा रहे हो, वैष्णव, क्योंकि आप वैष्णव का वो कर रहे हो, एज अ वैष्णव यू आर एक्टिंग नाउ। तो वही आपको वे करना पड़ेगा कौन सा आपका हायर है। या ये आता ही है, मतलब जैसे अगर आप महाभारत या कोई भी स्टोरी लाइन देखोगे, कोई भी इतिहास रामायण देखोगे, तो उसमें ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी धर्म बहुत आएंगे। जैसे जैसे राम जी को वनवास हुआ था, तो वहाँ पे उनका एक वो था कि राजा राजा की ड्यूटी करूं, या पिता का कहना मानूं, या फिर माता का कहना मानूं। तो अगेन उन्होंने उन्हें उस टाइम पे जो हायर लगा, उन्होंने वो किया। तो ऐसे ही महाभारत है कि मतलब जैसे आप भीष्म पितामह की लाइफ देख लो, या फिर किसी की भी देख लो, वो भरी हुई होगी। पांडवों की देख लो, बहुत बहुत इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे जब वो ये धर्म संकट वाला वो होगा। फिर आप तो उसी से सीख मिलती है। मतलब अगर नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, फिर तो क्या ही है, मतलब लाइफ इज गोइंग एज यूजुअल, राइट, बिजनेस एज यूजुअल आप वैसे बोलते हैं, बीएयू। तो इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग वहीं से आती है जब आपको ये धर्म संकट वाला एस्पेक्ट आता है। देन यू कैन सी ना कि क्योंकि अब आपको वे करना है, और वे करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे। तो वो प्रिंसिपल सिखाने के लिए महाभारत या रामायण इस तरह की स्क्रिप्चर्स में वो टीचिंग्स मिल रही है। तो If the guru decides the dharma, again there is a story within वो है ना एकलव्य। ओके, एकलव्य की स्टोरी जो है, again he was denied। एकलव्य का Karna is also there, एकलव्य is also there। वो एकलव्य वाला एक थोड़ा अलग केस है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो द्रोणाचार्य उनके गुरु नहीं थे। द्रोणाचार्य यू कैन से उन्होंने जस्ट नीति का प्रयोग किया, आई वुड से। वो आई डोंट थिंक उन्होंने गुरु एज अ गुरु एक्ट करके उसको कोई इंस्ट्रक्शन दी, वैसा नहीं था। उसने गुरु मान रखा था, एंड ही वॉज एन एनिमी ऑफ द हस्तिनापुर, और वो हस्तिनापुर के लॉयल थे। तो उन्होंने इन दैट वे, वो नीति है, वो नॉर्मल नीति है कि उन्होंने ठीक है उनको एक तरह से हटा दिया कि सो दैट ही डजंट बिकम अ डिस्टर्बेंस फॉर हस्तिनापुर। तो अगेन वी कैन डिबेट ऑन कि वो अच्छा था डिसीजन या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट जो आप बोल रहे हो वो गुरु की तरह से एक्ट नहीं किया था उन्होंने, वो एज अ नीतिज्ञ एक्ट किया था उन्होंने। कि जस्ट जैसे कोई पॉलिटिशियन एक्ट करता है ना कि मेरी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, आई विल एक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने उस टाइम पे उसको हायर माना और वो एक्शन परफॉर्म कर दिया। जैसे ये भी एक तरह से आई डोंट नो धर्म संकट आएगा नहीं, बट ओके, आई थिंक 6-5 ऑलरेडी देयर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके ब्रो, ओके ब्रो, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. थैंक यू माता जी। So we'll all like to thank Abhinav Prabhu for giving such a wonderful class by loudly chanting हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare राम Ram, हरे Hare राम Ram, राम Ram राम Ram, हरे Hare हरे। Hare. So just a few words about Abhinav Prabhu. I don't know how many of you know him, but he's one of the foremost, you can say, scholar in Vedas. If you have any technical questions, you can always reach out to him. He will always give you a very proper answer referencing the Vedas. So Prabhuji has shifted to Pune, so he would be coming here whenever he gets time. So we are really fortunate that we are getting his association. And he also comes in the morning classes. So every morning from 7 to 8,